नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जितनी भी आपने फुकरे टू बनाई थी, जो भी आ रही है, लेकिन उस समय आपके ओवर कॉन्फिडेंस की क्या थी वजह से? आपके पास एक टैलेंटेड टीम थी, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोगों को लगा था हल्की फुल्की फिल्म होगी, लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी किया और बहुत अच्छी लगी लोगों को, जबान पे चढ़ गई। शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। क्योंकि आपने हम लोग को कहा था। नहीं क्या, नहीं आई सेड वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब मृग ने कहानी लिखी थी एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस, अगर आप कहानी को आज भी देखोगे, यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म अगेन, एंड आई थिंक वो जो दो लड़कों जो हनी और चूचा के जो एम्बिशन थी, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका एक एम्बिशन था, मतलब क्या था, एक सिंपल था कि हमें कॉलेज में जाना है, एंड दे डिडंट हैव द नेचुरल स्किल एंड दे फिगर्ड आउट अ वे, एक जुगाड़ करके, राइट? सो आई जस्ट फील दैट व्हाटएवर देयर एस्पिरेशन वाज, जो उनके थे, वाज वेरी रिलेटेबल. Like, and I could identify because, and I mean, it took me back to my college days when it was aspirational for to going to a college in South Bombay. I went to a school in Jew here. I don't think I remember Qasim and me were in school. Most of the people would go to the colleges which was Miti Bai all around. To travel to South Bombay, it was not, I mean, it wasn't there. I don't think besides me and one, two other kids who aspired to do that. So I'm just trying to give you a comparison. The minute उसने जब script भेजी हमें and he narrated to us, there was an instant relatability to it. I know it was small that time, क्या ये क्या है, but somewhere again, like मैंने जब पहले भी किया, जब दिल चाहता है लिखी थी, it was the similar way कि you could identify with it and it feel real, and that's what happened, and I'm really glad कि it went on to becoming a franchisable film for us. मेरा सवाल डायरेक्टर से भी है। लामा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे इतने तगड़े राइटर हैं, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना डिफिकल्ट था फिल्म बनाते हुए। देखिए, शुरुआत तो अंदर से ही होती है, तो हम ही खुद इतने इनोसेंट हैं कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीज़ें लिख नहीं सकते। सो बट सी, इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक क्लीन, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ देखी जाए, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी इवन आफ्टर 10 years ये ब्रांड जो है मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है is wide. It's not limited to a certain section. So again वही था, आइडिया यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, इजी भी होते हैं, मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े इजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट, क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है, तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है, सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की। थैंक यू। Right, hearty congratulations for the trailer. Obviously, this is one of the most loved franchises in India. What I would like to ask you, from putting a producer's hat on, we have recently seen after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in 1 month. Gadar 2, Oh My God 2, Drinkle 2. Now, Fukre 3 is coming and it looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now, would feel that sequels are a much safer bet for the audience? You know, I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense, but you have to deliver, and there are some films you should just leave aside. You've created a certain market. If you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. You know, so there is a sense of an urgency created that I want to go and I'll mark a date and I want to consume them in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema.
You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming. Yeah, you're like a new age Govinda. You're so good in comedy. So Varun bhai, when you return to a character like Chucha, but you leave an impression, whether it's Chucha, whether it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha, is the first time when you do it, you know, raw है, तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं. But now when you're going it has this big built-in fan base. तो थोड़ी सी nervousness आ जाती है, कैसे मैं वो level maintain रखूँ? 100% आती है भाई. आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था. जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था. लिरिक्स और मैं हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे. प्रोसेस सेम ही है अभी भी. बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं. एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मेच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ गया, उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक कलेक्टिवली मिलिक्स और हम बैठ के कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना. बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा. लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था, कुछ एकदम रॉनेस थी और खुल के सब कर रहे थे. तो वही चीज़ को वापस सेकेंड पार्ट में भी लाना और वही चीज़ को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना. तो आई थिंक अनलर्न वॉज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस टाइम. हेलो, ट्रेलर लुक्स वेरी अमेजिंग टू ऑल ऑफ यू. ट्रेलर में तो बहुत मस्ती देखा, बट सेट्स पे क्या मस्ती किया, क्या प्रैंक्स किया? ऑल्सो डिड यू मिस अली फजल? We always miss him. यार जब भी याद आती है मिर्ज़ापुर देख लेते हैं. बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस एंड द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स दैट वी एक्चुअली शॉट इन, वी हैव शॉट फॉर रेंजिंग फ्रॉम लाइक -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक एक इंसान सबके सब दैट एरिया वे वी climbed down almost 2000 feet to shoot a particular sequence. वहाँ पे सब एक एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे. वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था. we are all of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है. so many folds of it. आई फील इट जस्ट ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म को प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए. फ्रॉम भारत 24, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो? बहुत लोगों को, आपको माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए. तो बहुत लोग हैं. किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सबका आभारी हूँ मैं. Degree begins at school, and I see a lot of education at school out there. Is there a Fukre moment that one of you or most of your representative, Pankaj ji and Richa, the Fukre boys and Ritesh, especially to you two. Yes, there's a Fukre moment that you would like to share. It began at school. इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे. बताने लायक कौन से. I've heard a lot about you. Oh my God. Today being Teachers' Day, I think it will be very relevant if you could share a message to your teachers about how's the journey been from then to now. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, is you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I recently I'm talking about a few years ago, went to his school, and the only thing
teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what will make out your child in school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers, you start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. मेरा सवाल पंकज जी से। पंकज सर, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो। एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट हुई थी तो कैरेक्टर आपका दरबान था, छोटा सा कैरेक्टर था, और आज पूरी मूवी की दरबानी कर रहे हैं। सो ये कहना ठीक होगा कि उस टाइम आपको फुकरे की जरूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं। पढ़िए, मैं कुछ बोल सकता हूँ? पढ़िए, मैं कुछ बोल सकता हूँ। ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में। We feel very safe that he is our दरबान, and I think anybody who works with him feels very very safe कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है। And thank you so much पंकज जी। नहीं बन सकती। मैं नहीं होता तो भोले से मिलवाता कौन इनको? हेलो, मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फिल्में होती हैं जिनके सीक्वल्स भी इतने वर्क करते हैं, और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज़्यादा जो है प्यार ऑडियंस का मिलता है। और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ, जिस तरह से दोनों सीजन इतने अमेजिंग रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज है अभी तक? It feels like I'll repeat myself, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फिल्म अगर जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट 1 में लोगों को मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही थी। मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट 1 में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही है उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है। हम सब के मिलियो हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, जब हमने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो खुद ही भूल गई, तुझे तूने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में। पानी, मम्मी को पानी पीना है। आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत है, क्लीन कॉमेडी। हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है। तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो, और मैं तो ये भी कहूँगी अभी भी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी। और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नॉट टू क्रिएट नाइस मेमोरीज। कुछ कहना चाहिए, क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी, वो लोग पसंद करते हैं ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है। प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो एक ह्यूमर और कॉटनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे। इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगे जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है। तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और नेक सर, जो इस फिल्म में भी है। थैंक यू।
मैं वेट नहीं करूँगा। कि मतलब आपका जो किरदार है वो पिक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा किरदार सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, लाइक सब आप पे डिपेंड है, सब आपसे आपको भाव दे रहे हैं। मेरे हिसाब से बता रहे हो, पूछ रहे हो? अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लगता है? थैंक यू। फुकरे 1, 2, 3 मतलब कंटिन्यूटी में आप हैं, तो अपने रोल के बारे में क्या बताना चाहिए? रोल के बारे में आप सबने फुकरे देखी है, रिटर्न्स देखी है, रोल सेम है। लाली हुई है, चूचे से लड़ता रहता है, अपने पापा से लड़ता रहता है। नहीं, ऑब्वियसली जब हम जाते हैं पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इस पे मेहनत करते हैं हम, एंड सारे एक्टर्स करते हैं। और इस बार भी अभी आपने पूछा ना अभी कि ये फिल्म लोगों को क्यों पसंद आती है, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद आती है। थैंक यू। इसकी वजह से मंजूर जैसा कोई नहीं। पंकज जी से मेरा सवाल है कि हिंदी को आपने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, लाइक अमित जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके बाद आप हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जबकि आज के टाइम में डायलॉग भी इंग्लिश में लिख के दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे समाज में आप हिंदी को लेके इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और आप हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब वो मेरा मेन था। नहीं, इस फिल्म में भी मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी। ग्रीक ने मुझे देवनागरी में ही दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है। हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं हम, हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, पर हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी में कहते हुए आखिरी प्रश्न लेना चाहेंगे हम हमारे आखिरी तो उर्दू अंतिम प्रश्न आपको सैयद, इंडिया correspondent filmfestivals.com. Charlie Chaplin said that somebody slipping on a banana skin and falling in a manhole is not comedy. Although at that time, this was supposed to be comedy. He says somebody walks, notices a manhole, does not fall in it, takes a step across, then slips on a banana skin and falls back into the manhole. That is comedy. One would like to know what is your definition of true comedy? सर चार्ली चैपलिन थे, इतना बोल गए, मैं तो इतना सोचता ही नहीं सकता। मतलब फुकरे जवाब कि जैसी ये फिल्म है, मतलब जब हम विपुल और मैं बैठते हैं लिखने, जब प्रोड्यूसर का आदेश आता है बनाने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, और हम बस बैठ के एक दूसरे से खाना क्या खाना है, क्या मंगवाएं आज, थोड़ा बहुत गाने इधर उधर के बातें, और बीच में 1-2 लाइनें लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है, और फिर वो जाके हम सुना देते हैं। सो इसीलिए टाइम भी लगता है हमें। आप देखेंगे एक्चुअली 10 साल में 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ना ही देखिए एक बहुत बढ़िया एक बहुत मानने वाली बात ये भी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी प्रेशर कभी नहीं आता कि फटाफट बनाओ। सो हमें टाइम मिलता है, हम बातें करते हैं, हम एक शब्द यूज करना चाहूँगा, बकवास करते हैं काफ़ी आपस में एक दूसरे से। मुझे मालूम पड़ा है 4 साल का मेहनत किया 1 महीना। तो वो फिर पेपर पे उतरता है, तो वही फिर हमें आपने आज स्क्रीन पे देखा अभी 2.5 मिनट के ट्रेलर में, एंड फिल्म भी ऐसे ही है। 2 फिल्में पहले आ चुकी हैं जिसमें आप देख चुके हैं।
बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कॉमेडी हर टाइप की होती है, स्लैपस्टिक भी होती है, डायलॉग बेस्ड भी होती है. जैसे अभी एक मैम ने कहा कि पंकज जी जैसे बोलते हैं वो लगता भी नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हैं, पर लोग फूट फूट के हंसते हैं. तो वो सिर्फ एक अपने अंदाज में एक लाइन भी बोल जाते हैं, तो कॉमेडी वो भी होती है. तो आई थिंक हर फॉर्मेट है, एंड बस हम तो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं. दैट्स इट. Thank you. Thank you so much for all the questions by the media. Thank you so much for all the answers and the